کہ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا مجموعی کوالٹی انڈیکس 479 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آب و ہوا مزرعہ صحت ہے۔ CRP آفس کے طرف شرح آلودگی 756 ریکارڈ، اقبال ٹاؤن 784، سول سیکریٹریٹ کے طرف شرح آلودگی 688 ریکارڈ کی گئی ہے۔ برکی روڈ 521، عبداللہ کھوکھر ٹاؤن میں شرح آلودگی 504 ریکارڈ کی گئی۔ بیتیا روڈ 433، عسکری 10 کی طرف شرح آلودگی 430 ریکارڈ۔ شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ماسک کا استعمال لازم بنائیں۔ طبی ماہرین نے ہدایات جاری کر دی ہیں تو لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا مجموعی کوالٹی انڈیکس 479 ریکارڈ کیا گیا ہے اور آب و ہوا مزرعہ صحت ہے۔ CRP آفس کے طرف شرح آلودگی 754 ریکارڈ، اقبال ٹاؤن میں 784، سول سیکریٹریٹ میں 688، برکی روڈ 521، عبداللہ کھوکھر ٹاؤن میں شرح آلودگی 504 ریکارڈ، بیتیا روڈ 433، عسکری 10 میں آلودگی 430 ریکارڈ۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ابراہیم قریشی۔ جی ابراہیم۔ جی بالکل، اس وقت بات کر لیں لاہور کے آلودہ ترین شہروں کی تو اس وقت اسموگ کے متاثرہ شہروں میں اس وقت لاہور جو ہے وہ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہا ہے، جس کے بعد اگر بات کر لیں کہ ہم لاہور کا اس وقت مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کیا ہے، تو لاہور کا اس وقت مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس تقریباً جو ہے وہ 479 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بات کر لیں لاہور کے متعدد علاقوں میں جہاں پہ اسموگ کی شرح اس وقت کیا ہے، تو CRP آفس میں اس وقت سب سے زیادہ اسموگ کی شرح جو ہے وہ 754 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ اقبال ٹاؤن میں اس وقت اسموگ کی شرح جو ہے وہ تقریباً 784 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سول سیکریٹریٹ میں تقریباً 688، برکی روڈ پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ تقریباً 521 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کر لیں دیگر علاقوں کی تو عبداللہ کھوکھر ٹاؤن میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جو شرح آلودگی ہے وہ تقریباً 504 جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر علاقوں کی بات کر لیں تو برکی لاہور میں اس وقت اسموگ کی شرح جو ہے وہ تقریباً 446 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیتیا روڈ پر اس کے اطراف کے علاقوں میں اگر بات کر لیں شرح آلودگی کی تو 433 جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ عسکری 10 کے اطراف کے علاقوں کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر اسموگ کی شرح جو ہے وہ تقریباً 430 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آج دن بھر جو ہے وہ لاہور دوسرے نمبر پر رہا اور یہ متعدد بار دیکھا گیا ہے کہ لاہور جو ہے وہ کبھی پہلے پہ کبھی دوسرے نمبر پر ہوتا ہے، بلکہ اب تو نومبر کے اوائل سے اور نومبر کے وسط سے اور اس کے بعد نومبر کے آخر تک اب دسمبر چونکہ شروع ہو چکا ہے اور دسمبر کا جو ہے وہ وسط آ گیا ہے، لیکن لاہور جو ہے اس میں اسموگ کی شرح جو ہے وہ کم نہیں ہو، بلکہ نومبر کے بتانے کا مقصد یہ کہتا ہے نومبر کے اوائل میں وسط میں اور آخر میں اسموگ جو ہے وہ کم دکھائی دی، لیکن دسمبر کے آتے اور دسمبر کے تقریباً اب مڈ میں دسمبر کے وسط میں اب جو اسموگ کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، جبکہ لاہوری جو ہے وہ اس سے کافی پریشان ہے۔ بخار جیسی علامات ہیں اور دیگر علامات جو کہ اسموگ سے بیماریاں جنم لے رہی ہیں، ان کی علامات تمام تر جو ہے وہ لوگوں میں پائی جا رہی ہیں، جس سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں۔ لوگ جو ہے وہ اس اسموگ سے، اس جان کے روگ سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو چکے ہیں، اذیت میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین کا لوگوں کی صحت کو، آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو قریبی طبی ماہر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی صحت کے مطابق بہتر مشورہ جو ہے وہ دے سکے۔ جی ابراہیم قریشی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے لیٹر مقرر، دکانوں پر 200 روپے فروخت جاری۔ دہی کی سرکاری قیمت کے بجائے 240 روپے کلو میں فروخت جاری ہے۔ دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شہر بھر میں دودھ اور دہی کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری شیر فروشوں کی گرہ فروشی سے پریشان حال ہے۔ دودھ کی سرکاری قیمت 170 روپے لیٹر مقرر، جبکہ دکانوں پر 200 روپے لیٹر تک فروخت جاری ہے۔ دہی سرکاری قیمت کے بجائے 240 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ دودھ کی بڑھتی قیمتوں نے چائے کے شوقین افراد کو پریشان کر دیا۔ دہی مہنگا ہونے کے باعث دہی اور لسی بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے صورتحال کا نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت میں 3 روپے کا اضافہ۔ برالر انڈوں کا سرکاری ریٹ 358 روپے فی درجن مقرر کیا گیا ہے۔ برالر مرغی کا پرچون ریٹ 461 روپے فی کلو برقرار ہے۔ ادھر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ سبزی اور پھل سرکاری نیٹ سے 20 سے 50 روپے کلو اضافی بیچے گئے۔ سردی بڑھتے ہی فارمی انڈے مہنگے۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت میں 3 روپے کا اضافہ۔ برالر انڈوں کا سرکاری ریٹ 358 روپے فی درجن مقرر۔ فارمی انڈوں کی پیٹی کا تھوک ریٹ 10,620 روپے مقرر کیا گیا۔ برالر مرغی کا گوشت گزشتہ روز کی قیمت پر برقرار۔ برالر مرغی کا پرچون ریٹ 461 روپے فی کلو پر مستحکم رہا۔ شہر میں برالر گوشت کی فروخت کے حوالے سے اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں دکانداروں کی جانب سے گوشت کی سرکاری قیمت کے برعکس فروخت جاری ہے۔ فارم ریٹ زندہ برالر 290، ہول سیل 304، پرچون 318 روپے جاری کیا گیا۔ ادھر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ سبزی اور پھل سرکاری نیٹ سے 20 سے 50 روپے کلو اضافی بیچے گئے۔ شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی۔
ओपन मार्केट में नया कच्चा आलू दर्जाए अव्वल 45 रुपए की बजाय 60 रुपए किलो, प्याज 105 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। टमाटर सरकारी कीमत 60 की बजाय 80 रुपए किलो, भिंडी 110 की बजाय 130, करेला 70 की बजाय 120 रुपए बेचा जा रहा है। बाजारों में फल भी 20 से 50 रुपए किलो इजाफी बेचे जा रहे हैं। शहरियों की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी नेखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया जा रहा है। ताजपुरा चौक और अतराफ में जारी तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार है। 3 माह कबल शुरू होने वाले मंसूबे मुकम्मल न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सड़क पर पड़ा मलबा, गड्ढे और सीवरेज के पानी से शहरियों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। मजीद सूरत हाल से अपडेट करेंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल। जी बिल्कुल, ताजपुरा और उसके इतराफ में जारी तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार होकर इलाका मकीनों और ताजरों के लिए अजियत बन चुके हैं और 3 माह से जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं ये इंतज़ामिया बर वक्त मुकम्मल करने में नाकाम है। सड़क पर बिखरा मलबा, गहरे गड्ढे और जो जगह जगह पड़ी बड़ी बड़ी सीवरेज की पाइपलाइनें हैं और सीवरेज का पानी है, उससे इलाका मकीनों की आमदरफ्त शदीद मुतासिर है और यहाँ पर जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह चुका है। मेरे साथ इलाका मकीन और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, क्यों ये मंसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं किए गए? सर, आते हैं सामान फेंक के चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। ट्रैफिक वन वे हुई है, एम्बुलेंस वगैरह आती है, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अवाम कोई तो अंधेरे में इनकी लाइट नहीं होती, वो बजरी के ऊपर चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। इनको बड़ी मरतबा शिकायत की है जी, कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता ये ढेरी सामान की यहाँ पे लगा के कहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। रात को फेंक जाते हैं, 3-4 दिन पड़ा रहता है, एक दिन साफ़ कर लेते हैं, फिर यहीं पे दोबारा ये गंद पड़ा होता है। अवाम को एक दिन पता होता है रोड क्लियर हो गया, दूसरे दिन आते हैं। वाले से कुछ शिकायत करते हैं आप इनसे? हाँ जी, शिकायत की है, मुद्दत बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती इनकी। हाँ जी बिल्कुल, शिकायत के बावजूद इंतज़ामी अदारे इन मंसूबों को मुकम्मल करने में नाकाम हैं। शहरियों का ये शिकवा है कि कई माह से यहाँ पर जो तरक्याती मंसूबों के तहत काम जारी है मगर इसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा, जिससे रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं वो शदीद मुतासिर हैं। आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेकर ताजपुरा के इलाके में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करवाने का जो मुतालबा है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर की तब्दीली के लिए कड़ी शराइत, डिफेक्टिव कोड के साथ मीटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट लाजिम करार। डिफेक्टिव कोड लगाने, खराब मीटर तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लगाना होगी। MNT रिपोर्ट की रोशनी में मीटर को चेक किया जाएगा। लेस्को ने डिफेक्टिव कोड की मद में मीटर्स तब्दीली पर कड़ी शराइत आयद कर दी। डिफेक्टिव कोड लगाने, खराब मीटर तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई। लेस्को ने डिफेक्टिव कोड के साथ साथ मीटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट हासिल करने की शर्त आयद कर दी। कावानीन के मुताबिक अब डिफेक्टिव कोड लगाने और खराब मीटर को तब्दील करने के लिए MNT रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। लेस्को में MNT रिपोर्ट की रोशनी में मीटर को चेक किया जाएगा। सार्फिन के डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील किया जाएगा। लेबॉर्ट्री में खराब होने वाले मीटर्स की डाउनलोड रिपोर्ट वसूल की जाएगी, जिसकी रोशनी में मिलने वाले यूनिट्स पर सार्फिन को बिलों में डेबिट क्रेडिट किया जा सकेगा। रिंग रोड पुलिस को CTO लाहौर के मातहत करने का फैसला। CTO अता वहीद रिंग रोड पुलिस की नफरी के इंतजामी और ऑपरेशनल मामलात को देखेंगे। रिंग रोड पर 1 SP, 4 DSP, 11 इंस्पेक्टर ड्यूटी दे रहे हैं। रिंग रोड पुलिस को CTO लाहौर के मातहत करने का फैसला कर लिया गया। जरा के मुताबिक CTO अता वहीद रिंग रोड पुलिस की नफरी के इंतजामी और ऑपरेशनल मामलात को देखेंगे। रिंग रोड पर 1 SP, 4 DSPs, 11 इंस्पेक्टर ड्यूटी दे रहे हैं। 180 वार्डन्स और 142 ट्रैफिक असिस्टेंट ड्यूटी पर मामूर हैं। जरा के मुताबिक रिंग रोड पर तैनात स्टाफ डेप्यूटेशन पर ट्रैफिक पुलिस से रिंग रोड अथॉरिटी में भिजवाया जाता है। CTO लाहौर कानून साजी करके जल्द मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवाएंगे। कहना गाछा के सैकड़ों अफराद LGA के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं हमारे घर और ज़मीनें नाजायज़ तरीके से जब्त की जा रही हैं। ज़मीन के मालिकान से फ़रोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। कानागाचा के सैकड़ों अफराद LDA के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मकीन कहते हैं हमारे घर और जमीनें नाजायज तरीके से जब्त की जा रही हैं। जमीन के मालिकान से फरोख्त के हवाले से कुछ पूछा नहीं गया। मुतासरीन बोले LDA हमारी जमीनों का 10% मुआवजा दे रहे हैं। हम यहाँ पर सारे दोस्त इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे गाँव दो तूर वडैच और सिद्धर और हल्लो की इधर जमीन है तकरीबन 17-18 हज़ार कनाल। ये LDA रुकार कर रही है और जबरदस्ती रुकार कर रही है। अपील करते हैं
हैं CM साहबा से, प्राइम मिनिस्टर साहबा से, आर्मी चीफ साहब से भी अपील करते हैं कि हमारी ज़मीन के रेट पूरे दिए जाएं और जो छोटे छोटे घर है इनको बेकार ना किया जाए। मुतासरीन बोले LDA हमारी जमीनों का 10% मुआवजा दे रहा है, हर दरवाजा खटखटाया मगर सुनवाई नहीं हो रही। ज़बरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है इनसे, ना बगैर किसी नेगोशिएशन के, बगैर किसी मीटिंग से, लैंड ओनर से कोई मीटिंग नहीं की गई, तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये महकमा जो LDA है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। हर प्लेटफॉर्म पे गए हैं, जो हमारे MNA राना मुबशिर इकबाल, 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ से इकट्ठे करके उनके प्लेटफॉर्म पे गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की है बाहर मतलब हालांकि जो हमारे राना साहब हैं वो पब्लिक अफेयर के वफाकी वज़ीर हैं, वो हमारी ये डिस्कशन पब्लिक असम्बली में भी करनी चाहिए उन्हें, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई। मुजाहरीन का कहना है कि हम पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, घर ले लिए गए तो सड़क पर आ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस ले। सैकड़ों मुतासरीन बैनर्स उठाए नारे लगाते रहे, जमीन के माकूल मुआवजे का मुतालबा करते दिखाई दिए। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 म्यूनसिपल कमेटी के इंतजामी ढांचे की सिफारिशात मुकम्मल। म्यूनसिपल कमेटी में इख्तियारात, नुमाइंदगी और इंतखाबी तरीक़ेकार को वाज़ेह और मुनज़्ज़म किया गया। म्यूनसिपल कमेटी मकामी सतह पर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे सकेगी। मकामी टैक्स फीस और जुर्माने आयद और वसूल करने का इख्तियार भी म्यूनसिपल कमेटी को हासिल होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत म्यूनसिपल कमेटी के इंतजामी ढांचे की तश्कील से मुतालिक सिफारिशात मुकम्मल कर ली गई हैं। मुजवज़ा निज़ाम के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी में इख्तियारात, नुमाइंदगी और इंतखाबी तरीक़ेकार को वाज़ेह और मुनज़्ज़म किया गया। सिफारिशात के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्टोरल कॉलेज चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बिलवास्ता और पार्टी बुनियादों पर करेगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जबकि उनका इंतखाब शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगा। म्यूनसिपल कमेटी के लिए मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 5 अरकान भी वोटिंग में शामिल होंगे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार ऐवान के अंदर या बाहर से हो सकते हैं। इंतजामी ढांचे के तहत चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी इंतजामी उमूर का सरबराह होगा। तमाम यूनियन काउंसिल के चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी के एक्स ऑफिशियल मेंबरान होंगे। म्यूनसिपल कमेटी में खातीन, अक़लियतों, नौजवानों और मजदूरों की नुमाइंदगी मखसूस नशिस्तों के जरिए यकीनी बनाई जाएगी। म्यूनसिपल कमेटी का इंतजामी अमला चेयरमैन के मातहत काम करेगा। म्यूनसिपल कमेटी मकामी सतह पर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे सकेगी। सफाई, पानी की फराहमी, निकासियाब, सड़कों और दीगर शहरी सहूलियात की जिम्मेदारी भी म्यूनसिपल कमेटी पर आयद होगी। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में पहली लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज कॉन्फ्रेंस डिप्टी चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन लिसानियात, मुहक्किकीन और रिसर्च स्कॉलर्स शरीक हुए। मुबारकबाद देना चाहता हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी की पूरी टीम को और कॉर्पस की पूरी टीम को, रिसर्च सेंटर की, जिन्होंने इन ज़बानों में और बिलखुसूस उर्दू ज़बान के हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका डेटाबेस डेवलप करना और कॉर्पस टूल्स के ज़रिए उनको एनालाइज करना और इन स्किल्स को अगली नस्ल यानी तलबा तालिबात तक मुंतकिल करने में अहम फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस और टेक्निकल सेशंस हुए। 36 के करीब जो है रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए हैं, जिसमें इसके अलावा 50 के करीब नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स मौजूद थे। पैनल डिस्कशंस हुई जिसके अंदर पाकिस्तान में जो इनोवेटिव लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाना कैसे किया जाए और उसमें कंप्यूटिंग को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए गए हैं। यूज़र फ्रेंडली ऐप्स भी डेवलप कर रहे हैं और स्पेशली लैंग्वेज के हवाले से जो अचीवमेंट्स हैं और लैंग्वेज के मुख्तलिफ यूजेज बाई यूजिंग द डिफरेंट टूल्स, वो हम मार्केट में इंशाल्लाह ला रहे हैं और कमर्शियली वो अवेलेबल होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद अप्लाइड लिसानियात, लैंग्वेज थ्योरी, डाटा और कंप्यूटेशनल पेशरफ्त के तनाजुर में तहकीक को फ़रोग देना था। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। ख़याल नो और बस में राहत सुखन के ज़ेर-ए-तमाम रसाई अदब कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी जनरल ख़याल नो सैयद हुनैन जैदी ने इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस में इल्म व अदब से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। ख़याल नो और बस में राहत सुखन के ज़ेर एहतमाम रसाई अदब कॉन्फ्रेंस हुई। सेक्रेटरी जनरल ख़याल नो सैयद हुनैन जैदी ने इस्तकबालिया पेश किया। कॉन्फ्रेंस में काजिम नासरी, शहजाद रोशन गिलानी, डॉक्टर बसीरा अमरीन की शिरकत। जावेद हसन, डॉक्टर अजूर शेराजी, उर्फी हाशमी, डॉक्टर अरसलान राठौर समेत दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में नोहा निगार मजहर आब्दी को नजम अफंदी अवार्ड से नवाजा गया। काजिम नासरी का कहना था, कॉन्फ्रेंस का मकसद रसाई अदब को फरोग देना है। हर बेदार और जिंदा कौम अपनी तारीख और अदब से मोहब्बत करती है। वो अदब जो जालिम के सामने डट जाने की क़ुव्वत और सलाहियत अता करे, वो अदब जो इंसान को मज़लूमों की हिमायत की तरगीब दे, वो अदब है रसाई अदब।
رسائی ادب کی بہت ساری اصناف ہیں، مرثیہ ہے، سلام ہے اور نوحہ ہے۔ جنرل سیکرٹری حنین زیدی بولے رسائی ادب کی ایسی سخن ہے جو مزاحمت کا استعارہ ہے۔ آج کی کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ ایک تسلسل کی کڑی ہے کہ جس میں مرثیہ رسائی ادب کے حوالے سے ہم مختلف کانفرنسز کا پروگرامات کا انعقاد کروا رہے ہیں۔ تو آج بھی سلسلے کو ہم نے اس لیے جاری رکھا ہوا ہے کہ رسائی ادب کی ایک ایسی سخن ہے کہ جو مزاحمت کا استعارہ ہے۔ عرفی ہاشمی کا کہنا تھا مریثے سے ہمیں مختلف نقطہ نظر جاننے کے ساتھ ساتھ حق اور باطل میں فرق کرنے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ مرثیہ آج ان حالات میں جبکہ اخلاقی اقدار پامال ہو رہی ہیں، آپ کو ایک بہت جینون گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ مورل ویلیوز کو کس طرح اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر مہمانوں کو اعزازی اسناد سے نوازا گیا۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ سمن آباد ندیم شہید روڈ بٹ بیکرز اینڈ سویٹس کی جانب سے نئی برانچ کا افتتاح۔ آخری روز کسٹمرز نے 25% ڈسکاؤنٹ سے خوب فائدہ اٹھایا۔ بٹ بیکرز اینڈ سویٹس کی جانب سے نئی برانچ کے افتتاح پر 12، 13، 14 دسمبر تک کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا۔ آخری روز کسٹمرز بٹ سویٹ کی پروڈکٹس کوالٹی کو سراہتے نظر آئے۔ آپریشنل برانچ مینیجر سید نوید الحسن بخاری، زونل مینیجر نوید خان، زیگم بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ سید نوید الحسن بخاری کا کہنا تھا کہ بٹ سویٹس نے ہمیشہ معیار اور کسٹمرز کو ترجیح دی ہے۔ بٹ سویٹ کسٹمرز کو پتہ ہے کہ کوالٹی اور سروس سے پہچانی جاتی ہے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور الحمدللہ سمن آباد کی عوام نے 25% ڈسکاؤنٹ جو ہمارا 3 دن کے لیے تھا اس سے فائدہ اٹھایا اور انجوائے کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر جو ہے وہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ ہمارے اسپیشلی حلوہ جات جو سردیوں میں بٹ سویٹ کی سوغات ہیں تو وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ فریش پیزا بھی ہم نے ادھر سٹارٹ کیا ہے، لائیو سموسا بھی، اور ایک نئی چیز ہم نے ایڈ اپ کی ہے کہ گرل شوارما جو کہ ہم نے سمن آباد پہ یہ نیو سٹارٹ کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور کسٹمر اس کو بہت لائک کر رہے ہیں۔ کسٹمرز کی جانب سے نئی برانچ کا خیر مقدم کیا گیا۔ کسٹمرز کا کہنا تھا کہ بٹ سویٹ سے بہتر کوئی بیکری نہیں، گھر کے قریب بیکری کھلنے پر بے حد خوش ہیں۔ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ کہ یہ بہت اچھی برانچ کھولی ہے بٹ سویٹس والوں نے، اور بڑی معیاری چیزیں، سب چیزیں بہت معیاری ہیں۔ ہر چیز سویٹس دیکھ لیں، گاجروں کا حلوہ دیکھ لیں، اور بسکٹ دیکھ لیں، اور کیک دیکھ لیں، ہر چیز فریش اویلیبل ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ میں سمن آباد کا رہائشی ہوں، ٹھیک ہے، کیک رس اور بیکری بہت اچھی کھلی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بہت معیاری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تو 25% ڈسکاؤنٹ ملا ہے، یہ بہت بہتر ہمارے لیے۔ جیسے ان کی اوپننگ ہوئی نا فرائیڈے کو، میں تب سے مسلسل آ رہا ہوں، ان کی چیزیں اچھی ہیں اور سستی بھی، 25% ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ بچوں نے ضد کی ہے کہ بھی ہم نے سینڈوچ لینے ہیں ان کے نا، بچوں کو پسند آئے ہیں سینڈوچ، تو میں دوبارہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں یہاں سے سینڈوچ لیا اور اس کے سینڈوچ بہت مزے کے ہیں، یہاں سے ان کی ہر چیز بہت مزے کی ہے، ان کا ڈسکاؤنٹ ہے تو ہم فرائیڈے سے آ رہے ہیں۔ کسٹمرز نے بٹ سویٹس کی آفر سے فائدہ اٹھاتے خوب شاپنگ کی اور لائیو بیکنگ اور گرل شاورما سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ کیمرامین محسن کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42۔ کرسمس کی تیاریاں جاری ہیں۔ مسیحی برادری مذہبی تہوار منانے کے لیے پرجوش ہے۔ ماڈل ٹاؤن ایس بلاک میں کرسمس سٹال سج گئے ہیں۔ مسیحی برادری خریداری کر رہی ہے۔ کرسمس کی مناسبت سے مسیحی برادری نے چرچز اور گھروں کو روشنیوں سے سجا دیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے حسنین اولک۔ جی حسنین۔ جی بالکل، ماہ دسمبر کے آغاز کے ساتھ ہی جو کرسمس ہے اس کو منانے کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ جو مختلف سجاوٹی سامان ہے وہ خریدا جاتا ہے، چرچز اور گھروں کو زبردست جو روشنیاں ہیں ان سے سجا دیا جاتا ہے، اور کرسمس کی خوشیاں منانے کے حوالے سے جو ہماری مسیحی برادری ہے وہ بہت پرجوش نظر آتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ماڈل ٹاؤن ایس بلاک کے علاقے میں، اور یہاں پر ایک شاپ کے جو مناظر ہیں وہ یہاں پر آپ کو کیمرامین ندیم بھٹی دکھا سکتا ہے کہ کس طرح سے بہت بڑی تعداد میں جو یہاں پر ہماری مسیحی برادری ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور یہاں پر سے جو مختلف آرائشی اور سجاوٹی جو سامان ہے جو کہ کرسمس کے حوالے سے انہوں نے لے کے جانا ہے وہ اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پر طرح طرح کی بڑی زبردست جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ سٹالز جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں، نہ صرف یہاں پر ایس بلاک میں بلکہ پورے لاہور میں ہی اگر مختلف علاقوں میں اگر وزٹ کیا جائے، جن علاقوں میں جو ہماری مسیحی برادری ہے ان کی بہت بڑی تعداد ہے، وہاں پر ہی ایسے جو سجاوٹی سٹالز ہیں، جو دکانیں ہیں، وہ ان کی جو رونقیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یقینی طور پر یہ جو ایک بڑا زبردست تہوار ہے جو کہ
हमारी मसीही बरादरी है वो बड़े मजहबी अकीदत के साथ इसको मनाती है। उसको मनाने के लिए जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोर शोर के साथ जारी हैं और मुख्तलिफ जो सजावटी सामान है वो यहाँ से ख़रीदा जा रहा है और यकीनी तौर पर क्रिसमस के हवाले से बड़े पुरजोश भी हैं और एक एक दिन जो है वो गिन गिन के गुजारा जा रहा है और जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर वो इस हवाले से बड़े पुरजोश नज़र आते हैं। इसी तरह अगर चर्चिज़ की बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबात का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह दुआया तकारीब जो हैं उनका भी अहतमाम किया जाता है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो तकरीबात हैं जो कि घरों में भी सजाई जाती हैं उनका जो सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है और जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर अटेंड भी कर रहे हैं और जो अशिया हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने घरों के लिए, अपने घरों को सजाने के लिए लेके जाई जा रही हैं। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। फैसल टाउन यूसुफ कॉलोनी में किंगडम ऑफ गॉड चर्च में क्रिसमस की मुनासबत से 5वीं सालाना क्रिसमस केक कटिंग तकरीब MPA फिलबोस क्रिस्टोफर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने टैब्लो पेश किया और रिवायती गीत गाए। इस मौके पर बच्चों के लिए सेंटा क्लॉस ने तोहफे तकसीम किए। तकरीब में पास्टर आसिम इलियास ने दुआ करवाई। तकरीब में पास्टर अयूब, दाइम गिल, मेजर रिटायर्ड मकबूल समेत दीगर ने शिरकत की और क्रिसमस की मुबारकबाद दी। MPA फिलबोस क्रिस्टोफर का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिसमस को भरपूर अंदाज में मनाया जाता है जिसमें हुकूमत और इंतज़ामिया बेहतरीन किरदार अदा करती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं। अफवाज के खिलाफ आवाज़ उठाई गई तो मज़ाहमत की जाएगी। मुल्क की दिफा के लिए सिपा सलार के साथ खड़े हैं। इजलास का बुनियादी मकसद मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसको पर गौर व खौज करना था। आलम इस्लाम की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन का जो मामला है, सूडान की इस वक्त सूरत हाल है, कश्मीर का मसला है, इस हवाले से भी और हमारे जो दाखिली मसाइल हैं उस हवाले से भी इंशाअल्लाह वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। उससे पहले जो आज से इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा काउंसिल जो है वो एक मुल्क गिर सतह पर मुहिम शुरू कर रही है जिसका बुनियादी मकसद इस मुल्क की आवाम को, ये पाकिस्तान बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर। 77 साल गुजर गए हैं। वो निज़ाम जिसके लिए ये मुल्क बना था, इस मुल्क पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर-ए-तमाम ताजदारी सदाकत रैली दाता दरबार से शुरू होने वाली रैली आज़ादी चौक तक गई। अल्लामा गुलाम वहीउद्दीन जलाली, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी, शेख मोहम्मद नवाज कादरी की शिरकत, पीर मोहम्मद बिलाल रिजवी, मोहम्मद शौकत कादरी, साहबजादा अब्दुल्ला साकिब, सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर हम कदम हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक लाहौर के ज़ेर एहतमाम ताजदार सदाकत रैली मुनक्कद हुई। रैली पीर मक्की स्टॉप से आज़ादी चौक और वापस दाता दरबार की जानिब रवा दवा रही। डिविजनल सदर सरदार मोहम्मद ताहिर डोगर ने रैली की क़यादत की। रैली में शुरका मुनफरिद अंदाज में घोड़ों पर बैठे शरीक हुए। मोहम्मद ताहिर डोगर ने कहा, रैली हजरत अबू बकर सदीक रज़ी ताला अन्हा का पैगाम में आम करने के लिए निकालते हैं। आपके रोज़ा अनवर पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में जो आप तशरीफ फरमा है, वहाँ सिर्फ दुरूद और सलाम जाते हैं। वहाँ 70,000 फरिश्ते आते हैं और जाते हैं और क़यामत तक उनकी बारी नहीं आती। आज का ये यौम उन्हीं को खिराज अकीदत पेश करने के लिए है। अल्लामा गुलाम वहीउद्दीन जलाली, मुफ्ती सलीम नक्शबंदी ने भी रैली का पैगाम दिया। जितने सहाबा हैं उनसे मोहब्बत की जाए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो आज यौम है, इसको हमने बड़ी अकीदत से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मनाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत में निजात का जरिया है। शेख मोहम्मद नवाज कादरी, पीर मोहम्मद बिलाल रिजवी, मोहम्मद शौकत कादरी, साहबजादा अब्दुल्ला साकिब, अल्लामा शरीफुद्दीन कज़ाफी समेत रैली में बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए। रैली के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। जलानी पार्क में गुलदाउदी फेस्टिवल, मुख्तलिफ इक़साम के रंग बरंगे गुलदाउदी के फूलों की नुमाइश। बच्चे बड़े ख़ातीन सभी नुमाइश को देखकर इंतहाई खुश। बच्चों और नौजवानों के लिए भी मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ रखी गईं। जलानी
पार्क में गुले दाऊदी फेस्टिवल जारी। नीले, पीले, सफेद, सब्ज, नारंगी और गुलाबी फूलों की बहार। बच्चे, बड़े, खवातीन सभी नुमाइश को देखकर इंतहाई खुश दिखाई दिए। फूलों से मोर, दिल, पाकिस्तानी परचम, रंग बिरंगी तितलियों के मॉडल्स बनाए गए जो शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मुगल तर्ज के गेट, फवारे और खूबसूरत कॉरिडोर्स नुमाइश की दिलकशी को मजीद बढ़ा रहे हैं। मुख्तलिफ सेल्फी पॉइंट शहरियों के लिए खास कशिश बन गए। बच्चे भी स्नो कॉर्नर में भरपूर तफरीह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हसीन फूलों की रंगीन दुनिया देखकर कुदरत के करीब होने का एहसास होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, देखनी चाहिए, हर आदमी को आना चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है और सब बच्चों को लेके आना चाहिए इस पार्क में। अपने मम्मा पापा साथ यहाँ आए, मुझे ना बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ डिफरेंट कलर के फ्लावर्स है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा फ्लावर एग्जीबिशन। मैंने यहाँ पर फ्लावर एग्जीबिशन देखी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। स्पेशली उकाड़ा से आए हैं, अपने चाचू के घर हमने यहाँ पे स्टे किया था, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे फ्लावर्स की एग्जीबिशन है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है। कि मैं रेगुलर यहाँ वॉक करता हूँ सुबह आगे, तो फिर मैं अपने बच्चों को बड़ा शौक से बड़ी खुशी से लेके आया हूँ कि हमें एंजॉय करना चाहिए जो हमारी जो एग्जीबिशन होती है हर साल। इंतजामिया के मुताबिक गुले दाऊदी की तैयारी में पूरा 1 साल मेहनत की जाती है। ये फूल सिर्फ 20 से 25 दिन तक अपनी असल खूबसूरती बरकरार रखते हैं। कैमरामैन जमील के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।